conference open. Nisha, we request you to begin and pour your heart out, which you have been holding on for such a long time. Thank you. Thanks, Parul. So, these ones are very difficult, you know. हमारी मुलाकात अक्सर प्रेस से होती है जब हम कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या वी आर कमिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग समथिंग. But these ones are really difficult, and especially for me because I've not really been one of those controversial celebrities, and here my life is become controversial now. But thank you everybody for coming in. मुझे सिर्फ ये बोलना है, this is going to be short. I can't say short and sweet. There's nothing sweet about this, but all I'm going to say is that आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, and then you move on. You live and you let the other person live. फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, because I think they feel that that's an easier way out. And इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है. आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी दैट यू नो आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग. यस आई एम, आई वेरी मच एम. बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी. The first press conference that I did was on the 1st of June 2021. वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी because obviously I'm a public figure, और usually when you're famous and people know everything that happens in your life, तो जब FIR file हुई, the media got to know, and the other party, Karan Mehra, started talking about it, and obviously I had to counter it. But that time I was in pain, I was in a state of shock. A lot was happening. पुलिस मेरे घर पे थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है. सडनली इट्स लाइक योर लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट. बट टुडे आई फील मोर कंपोज्ड. आई फील आई हैव डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीलिंग, और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1-1.5 साल से. दैट मीन्स फ्रॉम 1 जून 2021 until today. तो without further ado, I wanna counter a few allegations that have been put on me. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, but a lot of people took my silence for my weakness, and I want to let you know that my silence is definitely not my weakness. I'm busy providing for my child. I'm trying to earn my living. I'm managing a lot of things. My life has taken a U-turn, and that's why I'm busy doing that. And I think that I should definitely give that more priority than answering to every single YouTube allegation that comes my way. So without further ado, I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself, because here we have a child involved. So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी, that is going to be fact based. That is not just my feeling. It's actually very factual. So I'm going to counter a few points. The first one being, Nisha, can you go in Hindi? I'm going to try. Certain things. Okay, I'm going to try. So the first one is section 377, जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? FIR में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल सेक्शन ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द आईपीसी की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो, तो देखें वो गूगल है.
बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स। और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है, उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है that we all had a natural sex together. So मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक IPC की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर। ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म where there is a media trial happening, because what is it going to give you? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? I really don't understand the point of this whole media trial. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी because I want to put an end to this media trial before it becomes a full blown one, because there are a lot of other people now who are participating in this. So अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। This is not made by me. The system is not made by me. Any decent man would not talk about this openly. 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है। आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फ़ीमेल होता है और इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर। उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी। इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम। इट्स अ कंप्लीट शेम। To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. 1, 2, I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें। तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. Fourth, the necessary documents along with proof like that has been attached in the court and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377.